Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Question is, a 32 years old pregnant female presented with 34 weeks pregnancy with complaints of pain in abdomen with decreased fetal movements. ठीक है, सो नॉर्मली एक 34 वीक्स आई, उसे कंप्लेन था कि पेन हो रहा है एब्डोमेन में और फीटल मूवमेंट्स परसीव नहीं हो रही हैं. अपॉन एग्जामिनेशन बीपी वॉज लेस 90/60 एंड फीटल हार्ट रेट was 100 and on PV examination blood is seen with cervical os closed. Preferred management. Okay, so gestation जो है वो 34 वीक्स है, ब्लड प्रेशर कम है, फीटल हार्ट रेट 100 ही है. सो दिस इज अ केस ऑफ फीटल distress. This is a case of fetal distress. 100 fetal heart rate is sufficient to cause fetal distress. And on PV, when they are saying that the blood is seen with cervical os closed, it means that the patient is going in preterm labor pains. Preterm labor pains, and the patient is at 34 weeks and is also having the pain in abdomen. So this is basically a case of fetal distress at 34 weeks. Fetal distress at 34 weeks. Okay, so the management is whether we will give tocolitis to stop the labor pain, whether we will induce the labor, or whether we will do immediately we will do cesarean, or we will wait and watch. Okay, so let's see what are the protocols in management of this patient. So answer to this question is no doubt immediate cesarean. Let's see how. बिकॉज देखो हमने देखना है कि सबसे प्रायोरिटी देनी है मदर के सर्वाइवल को, मेटर्नल सर्वाइवल को, देन हमने फीटल सर्वाइवल को देनी है, देन फीटल लंग मैच्योरिटी. ठीक है, अगर कोई भी इंडिकेशन है जो मदर के लिए डेंजरस है तो हमने फटाफट जो है मदर के सर्वाइवल की सोचनी है, उसके बाद हमने बच्चे के सर्वाइवल की सोचनी है, और लास्ट में हमने देखना है अगर टाइम है तो हम लंग मैच्योरिटी कर सकते हैं तो हम लंग मैच्योर करेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम नहीं है. मदर इज़ नॉट इन डेंजर एट ऑल. ठीक है, फीटस इज़ इन डेंजर, फीटल हार्ट रेट इज़ 100 एंड हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उसके लंग्स को मैच्योर करें. मोर ओवर 34 वीक्स का हो गई है प्रेगनेंसी. ठीक है, सो वी विल नॉट वेट फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी और वेट एंड वॉच, ये सारे ऑप्शंस हम नहीं करेंगे. अगर हम इंड्यूस करते हैं लेबर को तो इंडक्शन ऑफ लेबर विल टेक टाइम. Okay, so let's study now here what is the treatment of preterm labor pains. So first is if we have time we should get the lung maturity done. So it is done by steroid injections. We can give it IV or IM, any way we can give. Okay, dexamethasone इंजेक्शन जो है 6 mg इसकी डोज 12 आवर्ली देते हैं हम 4 डोजेस. ठीक है, 12 आवर्ली 4 डोजेस. ठीक है, सो जैसे मान लीजिए आज दिया हमने सुबह 9 बजे, तो शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे, फिर अगले दिन रात को 9 बजे. ठीक है, तो इस तरह से 4 डोजेस देते हैं 6 mg की. ओके, 6 mg की 4 डोजेस देते हैं, टोटल ऑफ 24 mg. एंड बीटामिथासोन की हम 12 mg की 2 डोजेस देते हैं 24 आवर्ली. फॉर एग्जांपल आज सुबह 9 बजे दिया तो कल सुबह 9 बजे दूसरी डोज देंगे. 24 आवर्ली 2 डोजेस ऑफ 12 mg. इसकी भी टोटल डोज 24 mg जाती है मदर को. सो बाय गिविंग दिस स्टेरॉइड्स the fetus it achieves the lung maturity. Okay, now second is the treatment of the preterm labor pain is tocolysis. ठीक है, tocolysis. So the drugs which we use for tocolysis, number 1 is beta agonist and they are salbutamol, ritodrine, isoxsuprine and terbutaline. ठीक है, salbutamol, ritodrine, isoxsuprine and terbutaline. And next is the calcium channel blocker. CCB का मतलब क्या है? Calcium channel blocker. This is a drug of choice for preterm labor pain and it's totally safe. Nifedipine. स्टार्टिंग डोज होती है इसकी 30 mg ओरल एंड इसकी मेंटेनेंस डोज होती है 20 mg. मेंटेनेंस डोज होती है 20 mg. ओके, यस, एक बार लोडिंग डोज 30 mg देके फिर 20 mg डिपेंडिंग ऑन हाउ इंटेंस द लेबर पेन्स आर.
कैल्शियम एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं हम, मैग्नीशियम सल्फेट इज़ द कैल्शियम एंटागनिस्ट। हमें पता है कि इट इज़ अ न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग एंड इट ऑल्सो लीड्स टू नियोनेटल हाइपोटोनिया। ओके, ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट, ऑक्सीटोसिन एंड atosiban, this is the drug which is safe in heart diseases. It is safe in heart diseases patient. ओके, ये ऊपर वाले तीनों ड्रग्स जो हैं, बीटा एगनिस्ट, कैल्शियम एंटागनिस्ट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये पल्मोनरी एडिमा कॉज करते हैं हाई डोजेस में। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने atosiban इज टू बी गिवन इन हार्ट डिजीजेस, और ऊपर वाले तीनों जो है हमने अवॉइड करने हार्ट डिजीजेस में। बट द निफेडिपिन इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस अमंग दिस थ्री। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर इंडोमेथासिन, इसको हम 32 वीक्स के बाद नहीं दे सकते बिकॉज इट लीड्स टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस after 32 weeks it leads to premature closure of ductus arteriosus. Okay, progesterone जो है it is smooth muscle relaxant and it is used only for the prophylactic treatment. Okay, prophylactically we can do, previous history है preterm labor pains की तो उसमें हम दे सकते हैं. Nitroglycerin patch, again it is a smooth muscle dilator, we can give it in it. Diazoxide, again these last के 3 these are smooth muscle dilator, ठीक है. So basically the drugs which we use in tocolysis are, number 1 is beta agonist and number 2 is calcium channel blocker and calcium antagonist, and third is oxytocin antagonist and prostaglandin synthesis inhibitor, and the last these 3 are the smooth muscle dilator. Out of this, calcium channel blocker drug is drug of the choice, and its dose is 30 mg oral loading dose and maintenance dose is 20 mg. ओके, सो आई होप ना आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि बिकॉज यहाँ फीटल हार्ट रेट 100 है, बिकॉज जो हमने वो टाइम लेना है लंग मेच्योरिटी के लिए, और जो टोकोलिसिस में टाइम जो लेते हैं यूजुअली जो प्रीटर्म लेबर पेन में हम टोकोलिसिस क्यों करते हैं. ठीक है, टोकोलिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 34 वीक्स से कम है, अगर 34 वीक से कम है तो हम 34 वीक से कम है तो हम क्या करें, यस 34 वीक से कम है तो हम टाइम ले लें लंग मेच्योरिटी का, बिकॉज हमने देखा कि ऑलमोस्ट इट टेक्स 48 आवर्स फॉर द लंग्स टू मेच्योर फीटस, तो हमें टाइम मिल जाता है, और जैसे ही लंग मेच्योर होता है वी कैन गो फॉर और डिलीवरी. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस प्रीटर्म लेबर पेन क्वेश्चन. थैंक यू. I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.